Hello aspirants, welcome to the lectures of History of Modern India from the book Spectrum. In the last lecture we were solving some MCQs on the chapter 6, which was People's Resistance Against British before 1857, and today we will be beginning the new chapter, that is Revolt of 1857, and this is chapter 7. Okay, so let's see what all we will discuss in this chapter. First is your discontent, that what were the dissatisfactions with the British government or the British rule. Second, 1857 revolts causes. What were the major causes like economic, political, administrative and so on. Next, we will see how the movement began, how it started and how it spread, that is how it expanded. Okay, next we will see the suppression, how the government, that is the British government, suppressed this revolt. Next, why the revolt failed. Okay, and then Hindu-Muslim unity factor, what was the role of the Hindu-Muslim unity. Next is nature of the revolt, what was the nature of the revolt, consequences, and in the end, the significance of the revolt, that is, what was the importance of the revolt. But before that, please like, share and subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notifications of my latest lectures. Okay, so let's begin our chapter 7, the revolt of 1857. From exam perspective, this is very important, so please focus really well. Okay, so in 1757, Battle of Plassey happened and British laid the first step towards getting power in northern India. So you remember, right, 1757 में Battle of Plassey हुआ है. Where it happened? In the Bengal region. Okay, कौन नवाब थे इस टाइम बंगाल के? सिराज, that is सिराजुद्दौला. So what was happening? क्यों हुआ था ये बैटल? बिकॉज द ब्रिटिश ऑफिशियल्स, कंपनी के जो ऑफिशियल्स थे इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के, दे वर मिस यूजिंग द पासिस. इफ यू रिमेंबर दस्तक्स, ठीक है, ये पासिस मिलते थे उन्हें ट्रेड करने के लिए, सो दे वर मिस यूजिंग इट. नाउ सिराज व्हेन ही गॉट टू नो अबाउट दिस, सो ही डिसाइडेड दैट वी विल एक्सपेल द इंग्लिश कंपनी फ्रॉम आवर लैंड. ओके, सो ये प्रिल्यूड था बैटल का, ये रीजन था बैटल का, ठीक है. एंड इस बैटल में if you remember, Siraj lost. He was actually murdered. British won. How they won? Actually, they were held by Mir Zafar. ठीक है? He was the commander of the Siraj. So Mir Zafar helped the British army and they won against Siraj. And this is how they started expanding their power. It was the first step जब उनकी power जो है consolidate होना शुरू हुई. ठीक है, ये फर्स्ट स्टेप था in that direction towards the expansion of their power, or establishing, I should say, establishing their power in the northern India. Where? In the northern India. Okay, and in 1857 took place the major revolt, that is revolt of 1857, which was a product of character policies of colonial rule after 1757. ये जो revolt हुआ, ये किसका प्रोडक्ट था? ये किसका रिजल्ट था? बेसिकली द पॉलिसीज ऑफ द कॉलोनियल रूल. जो ब्रिटिश गवर्नमेंट नए लॉज लेके आई थी, पूरा गवर्नेंस स्ट्रक्चर जो धीरे धीरे उन्होंने चेंज करना शुरू कर दिया, ठीक है. एंड दे स्टार्टेड इंटरफेयरिंग इन द एडमिनिस्ट्रेशन, एस्टेब्लिश्ड एडमिनिस्ट्रेशन, राइट. सो it was this revolt was a product of all these changes, and after noteworthy changes took place in the British policy of ruling over India. So all the changes, they accumulated and they resulted into the revolt of 1857. Now simmering discontent, that how the dissatisfaction, it started building up. Okay, accumulate hona shuru ho gaya. So cumulative effect of the British expansionist policies, पहले तो जो उनकी पॉलिसीज थी कि हमको धीरे धीरे इंडिया में एक्सपैंड करना है, मैक्सिमम टेरिटरीज अपने डोमिनियन में लेके आनी है, तो इन सब का मिला के एक इफेक्ट, ठीक है. दूसरा, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, एडमिनिस्ट्रेटिव इनोवेशंस. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, दैट इज चार्जिंग हाई टैक्सेस, ओके, एंड रूनिंग द इंडिजीनियस इंडस्ट्रीज, दैट इज हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज, इसका एक एग्जाम्पल है. इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था पीजेंट्स का, फार्मर्स का, आर्टिजन्स का, राइट. And the traders as well, जो indigenous traders थे, Indian traders थे. So this all adversely affected the position of all. That is, everyone was suffering, not just the lower strata of the society, that is lower class, that is the farmers or the poor people, but every class of the society was suffering.
Rulers of Indian state, obviously this is very obvious, and we have seen that British used to annex their territories after fighting the wars, okay, and the princely states or the princes of that kingdom or the region or the ruler of that region, they were reduced to mere pensioners and in some cases they were killed as well. ठीक है. Then सिपॉइज हमने लास्ट लेक्चर में भी देखा था that they were facing a lot of discrimination, okay, and they were also worried about the interference in their caste and religious system. ठीक है. उसके बाद जमींदार्स, peasants, traders, artisans, pandits, मौलवीज, every class of the society was suffering in one way or the other. ठीक है. So the simmering discontent burst in the form of a violent storm in 1857. तो ये सारा इकट्ठा होके एकदम बर्स्ट हो गया, फूट गया, किस रूप में? 1857 के रिवोल्ट के रूप में, ओके, विच शुक द ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया टू इट्स वेरी फाउंडेशंस. अब तक उन्होंने जितना खुद को स्ट्रॉन्ग कर लिया था, जितने अपने रूट्स उन्होंने स्प्रेड कर लिए थे इंडिया में, इस रिवोल्ट की वजह से वो सारे रूट्स उनके शुक हो गए, हिल गए, उनकी फाउंडेशंस हिल गई. ठीक है, ओके. नेक्स्ट, नाउ इट इज नॉट लाइक दैट 1857 रिवोल्ट हैपेंड आउट ऑफ अ सडन. वी नो दिस. ठीक है, ये हमने पहले भी डिस्कस किया. एंड इन द लास्ट लेक्चर वी सॉ सिपॉय म्यूटनीज टेकिंग प्लेस इन इंडिया वेल बिफोर 1857. ठीक है, इवन इन द मिडल ऑफ द 18th सेंचुरी भी हमने देखा. So this period between 1757 and 1857 was not all peaceful and trouble free. ऐसा नहीं था कि इससे पहले शांति बनी हुई थी. Okay, it saw a series of sporadic popular outbursts in the form of religio-political violence different regions में. ठीक है, different causes और reasons की वजह से revolts, rebellions और uprisings हुए. We saw all this in the previous chapter. ठीक है, so every kind of violence was there, religious and political as well. Then tribal movements we saw, peasant uprisings we saw, agrarian riots, okay, civil rebellions. ठीक है, so enhanced revenue demands and the what happened, famine जब आया, famine that is जब सूखा पड़ा या ड्रॉट आया, उस टाइम पे भी ब्रिटिशर्स ने जो उनके टैक्स रेट्स थे उन्होंने उनको कम नहीं किया. ये भी एक बहुत बड़ा रीज़न बना. ठीक है, क्योंकि ये ऑपरेशन था, एक तरीके का एक्सप्लॉयटेशन था. मैनी फार्मर्स दे डाइड ऑफ हंगर, यू नो. ओके, सो मैनी अ टाइम्स मूवमेंट्स अगेंस्ट लोकल मनी लेंडर्स टर्न इनटू रेबेलियन. अब हमने ये भी देखा था दैट ऐसा नहीं है हर जगह सिर्फ एलियन रूल के अगेंस्ट में रेबेल हो रहा है. देयर वर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ मनी लेंडर्स गोइंग ऑन व्हेन दे वर चार्जिंग हाई इंटरेस्ट रेट्स. ओके, या फिर वो क्या करते थे, अगर इंटरेस्ट रेट नहीं पे किया या प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट नहीं पे कर पा रहा है फार्मर या जो भी बोरोवर है, तो वो उसकी लैंड्स ज़बरदस्ती छीन लिया करते थे उनसे. सो दीज पीपल, okay, these money lenders and few zamindars, they were getting the support of the company. So that's why some movements happened against these people as well. Okay, and they had the support of police as well, because police was in the end was working under the British, right, in many pockets. Okay, then British interference in the native religious traditional customs. This is again we saw that कुछ traditions में, customs में interference by bringing new laws, by changing the terms of the traditions and the customs. ठीक है, एक example अभी हम देखेंगे इसमें आगे. So it resulted and this resentment resulted in the rebellions. Now major revolts took place in the south, east, west and the northeastern regions. So south में that is Tamil Nadu, Karnataka, Kerala, especially Tamil Nadu and Kerala में बहुत revolts हुए हैं. ठीक है, फिर ईस्ट में हमने देखा that is बंगाल में, उड़ीसा में, बिहार में revolts हुए हैं. वेस्ट में आप आएंगे तो इधर पंजाब एरिया में बहुत revolts हुए हैं. ठीक है, एंड नॉर्थ ईस्टर्न रीजन्स में तो हमने देखा ही था, देयर वर लॉट ऑफ ट्राइबल मूवमेंट्स गोइंग ऑन विच वर सप्रेस्ड ब्रूटली बाय द कंपनी. ठीक है, बहुत वायलेंस यूज करके, बहुत फोर्स यूज करके, वेपन्स यूज करके उनकी मूवमेंट्स को सप्रेस किया गया. तो ये सब हमने प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है. ओके, सो नाउ बिगिंस द रिवोल्ट ऑफ 1857. द मेजर कॉजेज, व्हाट वर द मेजर कॉजेज, क्या रीजंस थे, आखिर क्या वजह थी. So let's have a look at the question. Highlight some of the major causes of 1857 revolt. तो आपको कुछ causes बताने हैं. So first one is your economic cause. ठीक है, ये सारे जो हैं broad
दिए हुए हैं आपको ब्रॉड मैनर में. व्हाट यू हैव टू डू, आई हैव मार्क्ड द पॉइंट्स बट इट डजंट मीन दैट यू हैव टू जस्ट कॉपी एंड पेस्ट. आप खुद के उसको ब्रीफ में थोड़ा सा लिखिए, शॉर्ट में लिखिए, ठीक है, अपनी लैंग्वेज में. ओके, सो या, सो causes of the 1857 revolt, like those of the earlier uprisings, emerged from all aspects, that is including every sphere. Socio-cultural reasons भी हैं, economic भी है, political है, daily existence of Indian population cutting through all the sections, that is just we discussed that all the sections of the society they were suffering. Okay, now economic causes की अगर हम बात करें, so ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के आने के बाद जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक है इंडियन सोसाइटी का, वो डिस्ट्रॉय हो गया. कैसे डिस्ट्रॉय हुआ? फर्स्ट ऑफ ऑल हैवी टैक्सेशन, ठीक है, दैट इज हाई रेट्स ऑफ टैक्सेस. सो पीजेंट्स रिजॉर्टेड टू लोन्स फ्रॉम द मनी लेंडर्स. अब भाई टैक्स ज़्यादा लगेगा और पे करना है, नहीं तो लैंड चली जाएगी या फिर घर छिन जाएगा, उसके लिए लोन्स लेने जाते थे मनी लेंडर्स से या फिर ट्रेडर्स से. अब मनी लेंडर्स अगेन इन टर्न दे यूज टू चार्ज हाई इंटरेस्ट रेट, यूजूरियस मतलब बहुत हाई इंटरेस्ट रेट वो चार्ज कर रहे थे. और अगर ऐसा नहीं वो अगर बोरोवर जो है या वो फार्मर या पीजेंट है वो अगर रीपे नहीं कर पाता है उस लोन को, तो उनकी लैंड से उनको निकाल दिया जाता था. ठीक है, तो पहला इकोनॉमिक कॉज ये, दैट इज हाई टैक्सेशन एंड द हाई इंटरेस्ट रेट. ओके, नेक्स्ट, ब्रिटिश रूल ऑल्सो मेंट मिजरी टू द आर्टिजन्स एंड द हैंडीक्राफ्ट पीपल. इनके आने के बाद जो लोकल हैंडीक्राफ्ट पीपल, हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्रीज थी आई शुड से, उनको बहुत ही ज़्यादा लॉस हुआ. दैट इज़ गांव में, रिमोट एरियाज़ में लोग अपने घरों में they were carrying on these activities, handicrafts activities. that is handicrafts क्या होता है? दैट इज़ हाथों से आप कुछ भी कलाकारी कर रहे हो, उसमें कुछ भी हो सकता है, पेंटिंग्स हो सकती हैं, आप कोई कपड़े बना रहे, कोई कढ़ाई कर रहे हैं, लॉट ऑफ थिंग्स आर इंक्लूडेड इन दैट. तो हैंडीक्राफ्ट्स इंडस्ट्री जो है वो धीरे धीरे डिग्रेड होने लगी. क्यों? क्योंकि यूरोप में क्या आ गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन. ठीक है, ब्रिटेन में क्या आ गया था? इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो वहाँ पे तो मशीन्स यूज़ होने लगी थी, तो मशीन्स यूज़ होने की वजह से क्लोथ जो है वो रेडीमेड बन रहा था. ठीक है, उसमें अब आपको लोगों की ज़रूरत ही नहीं है. 10 लोगों की जगह एक पर्सन वहाँ मशीन ऑपरेट करके उतना ही अमाउंट या उससे ज़्यादा भी जो है मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है. तो हमारा जो इंडिया का जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री था उसको बहुत लॉस हुआ, क्योंकि लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलना बंद हो गया. क्योंकि जो ट्रेडर्स थे, जो क्लोथ्स उनसे पहले खरीदते थे या कोई भी क्राफ्ट का सामान उनसे खरीदते थे, अब उनको ज़रूरत नहीं थी वहाँ से खरीदने की. वो सामान अब ब्रिटिश में बन रहा था. और उल्टा हुआ ये कि अब वो सामान ब्रिटिश से बन के यहाँ आने लगा और यहाँ पे और सस्ते दामों में बिकने लगा. तो और ज़्यादा ये जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये लॉस में चली गई. यहाँ से वो सस्ता कपड़ा लेके जाते थे या सस्ते रॉ मटेरियल लेके जाते थे, वहाँ बनवाते थे और फर्दर फिर इंडिया में ही आके उसको बेच देते थे. सो दिस वाज ऑल हैपनिंग. ओके, सो एनेक्सेशन ऑफ द इंडियन स्टेट्स बाय द कंपनी कट ऑफ देयर मेजर सोर्स ऑफ पैट्रनेज. अब आपको पता है धीरे धीरे जैसे जैसे इंडियन स्टेट्स उनके अंडर आते गए, ठीक है, मराठास हो गए आपके नीचे साउथ में, जितने भी किंगडम्स हैं, मैसूर हो गया आपका, ठीक है, इधर बंगाल में आप देख लीजिए. तो ये जितने भी पहले से जो इंडियन स्टेट्स थे आपके, जो किंगडम्स ये काम कर रहे थे, ठीक है, ये एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड कर रहे थे लोकल पीपल को. अग्रीड? यस. तो ब्रिटिश के आने से इन लोगों का एम्प्लॉयमेंट जाने लगा, क्योंकि इंडियन स्टेट्स एनेक्स हो गए हैं. तो अब उनको कौन एम्प्लॉयमेंट देगा? ब्रिटिश तो दे नहीं रही है, वो तो देगी नहीं. ठीक है, सो द नेटिव रूलर्स एंड द नोबल्स हु कुड नॉट नाउ अफोर्ड टू बी पेट्रन्स ऑफ द क्राफ्ट वर्कर्स. अब ये जो क्राफ्ट वर्कर्स थे, ये जो आर्टिजन्स थे, इनका सामान कौन खरीदता था? ये नोबल्स खरीदते थे. ठीक है, जो रिच पीपल होते थे उस टाइम पे, वेल ऑफ पीपल होते थे, कोर्ट्स में वेल ऑफ पीपल होते थे. इंडियन कोर्ट्स में जो नोबल्स हैं, ऑफिशियल्स हैं, ठीक है, जो काम कर रहे हैं, हाई रैंक्स पे काम कर रहे हैं, वो इन लोगों के आर्ट्स खरीदते थे. ठीक है, बट जब इंडियन स्टेट ही नहीं रहा तो नोबल्स भी नहीं रहे, तो इनको खरीदेगा कौन? ठीक है, सो दिस वॉज हैपनिंग. Now British policy discouraged Indian handicrafts and promoted British goods. जैसा मैंने अभी आपको पहले बताया, highly skilled Indian craftsmen were forced to look for alternate sources of employment. अब जब handicrafts में ज़रूरत है नहीं, उनका सामान नहीं बिक रहा, तो उनको दूसरे एम्प्लॉयमेंट जो है वो ढूंढना पड़ा. ठीक है, एंड अब दूसरा एम्प्लॉयमेंट होना भी तो चाहिए, जो कि है नहीं. इधर
दे वर फोर्स टू डू एग्रीकल्चर, बट एग्रीकल्चर ऑलरेडी जो है वो प्रेशराइज्ड था, ठीक है, ऑलरेडी लॉट ऑफ पीपल वर एंगेज इन एग्रीकल्चर, और एग्रीकल्चर से भी ऐसा नहीं है कि चलो उसमें हाई रिटर्न मिल रहा है तो हम डेविएट हो जाते हैं, बल्कि हुआ ये लॉट ऑफ पीपल दे डाइवर्टेड टू एग्रीकल्चर सेक्टर, बट स्टिल मैनी दे कुड नॉट रिवाइव देमसेल्व्स, ठीक है, उनका जो सोर्स ऑफ इनकम है वो खत्म हो ही गया था। सो डिस्ट्रक्शन हुआ इंडियन हैंडीक्राफ्ट्स का, वॉज नॉट एकम्पनीड बाई द डेवलपमेंट ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रीज। एक तरफ हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री खत्म हो रही थी, खत्म होने की कगार पे थी, लेकिन दूसरी तरफ कोई दूसरी इंडस्ट्री नहीं आ रही थी जहाँ पे उनको नौकरियाँ मिलती। जैसे आज के टाइम पे आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, इंडस्ट्रीज़ हैं, ठीक है, अगर एग्रीकल्चर में नहीं भी काम करना है तो लेबरर आपके यहाँ जाके काम करती है, लेकिन उस टाइम पे मॉडर्न इंडस्ट्रीज ना के बराबर थी इंडिया में। ओके, सो ऑल्टरनेट सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट उनके पास नहीं बचा इन आर्टिजन्स के पास। सो अगेन ये एक ऑब्वियसली जो है रिजल्ट करेगा किस में, डिसकंटेंट में या फिर डिससेटिस्फैक्शन में। ओके, यहाँ पे कार्ल मार्क्स जी कहते हैं 1853 में उन्होंने कहा है दैट इट वॉज अ ब्रिटिश इंट्रूडर हु ब्रोक अप द इंडियन हैंडलूम। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन्स हैं, ठीक है। सो ये कह रहे हैं कि ये ब्रिटिश, जो ये बाहर से ब्रिटिश आए थे, जो इन्होंने घुसपैठ की है, इन्होंने इंडियन हैंडलूम को तोड़ दिया बिल्कुल, एंड डिस्ट्रॉयड द स्पिनिंग व्हील को डिस्ट्रॉय कर दिया। इंग्लैंड बिगेन विद डिप्राइविंग द इंडियन कॉटन्स फ्रॉम द यूरोपियन मार्केट, ऑब्वियसली क्योंकि वहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग होने लगी यूरोपियन मार्केट में, यूरोप में, तो यहाँ से जो क्लोथ जा रहा था उसकी डिमांड अब नहीं रही। रॉ मटेरियल जा रहा है यहाँ से, बट जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है, जो मार्केट में सेल होता है जाके, उसकी डिमांड नहीं है, ठीक है। तो इंडिया का जो मार्केट है वो खत्म हो रहा है। इट देन इंट्रोड्यूस्ड ट्विस्ट इनटू हिंदुस्तान एंड इन द एंड इनअंडेटेड द वेरी मदर कंट्री ऑफ द कॉटन। अब आपको पता है इंडिया कॉटन के लिए बहुत फेमस है, कॉटन प्रोडक्शन के लिए। आपको पता है ये जो ब्लैक सॉइल वाले जितने रीजन्स हैं, आपका गुजरात में कितना अच्छा कॉटन होता है, बंगाल में आपका कितना अच्छा कॉटन होता है, इवन सदर्न इंडिया में भी कॉटन होता है आपका। तो पास्ट में ये रीजन्स फॉर द कॉटन प्रोडक्शन वर वेरी फेमस, ठीक है, एंड फार ऑफ लैंड्स तक जो है कॉटन जो है वो ट्रेड किया जाता था इंडिया से, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स के आने के बाद, ब्रिटिश इंट्रूजन के बाद, ये जो कंट्री जिसको मदर ऑफ कॉटन कहा जाता था वो पूरी तरीके से, ये नेम जो है उसका डिस्ट्रॉय हो गया, खराब हो गया। सो ये जो कार्ल मार्क्स जी का कहना है, ये अगर आप कोट करेंगे अपने किसी मेंस आंसर राइटिंग में, इट विल बी रियली हेल्पफुल टू यू एंड इट विल फेच यू एक्स्ट्रा मार्क्स। ओके, चलिए नेक्स्ट रीजन देखते हैं। इंडियन ट्रेड एंड मर्सेंटाइल क्लास वॉज डेलिबरेटली क्रिपल्ड। ट्रेड एंड मर्सेंटाइल, दैट इज जो बिजनेसमैन थे स्मॉलर लेवल्स पे भी और हायर लेवल्स पर भी, ठीक है, इन लोगों को भी बहुत नुकसान हुआ, बिकॉज ब्रिटिश दे इम्पोज्ड हाई टैरिफ ड्यूटीज ऑन इंडियन मेड गुड्स। इनका जो सामान यूरोपियन मार्केट्स में जा रहा था वहाँ पे ये इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगा रहे थे। आपको पता है ना दैट इम्पोर्ट ड्यूटीज़ लगाई जाती, दैट इज टैक्स लगा देते हैं। कोई सामान जब दूसरी कंट्री से, लेट्स से इंडिया से अगर कोई सामान चाइना से आ रहा है तो उस पर कुछ एक्स्ट्रा टैक्स भी लगाया जाएगा इंडिया में घुसने से पहले। तो इंडिया का सामान जो यूरोपियन मार्केट्स में जा रहा था वहाँ पे ब्रिटिशर्स जो है वो हायर रेट्स ऑफ टैक्सेस लगा रहे थे। अगर हायर रेट ऑफ टैक्सेस लगाएंगे तो इससे ऑब्वियसली उस ट्रेडर को नुकसान होगा जो अपना सामान भेज रहा है, क्योंकि उसका सामान जो है वो एक्सपेंसिव होगा कंपेयर टू द गुड्स जो वहाँ पे लोकली शायद अवेलेबल है। या फिर मैं ये कहूँ कि जो ब्रिटिश का सामान था वो थोड़ा सा चीपर था इनके कंपैरिजन में, इंडियन ट्रेडर्स के सामान के कंपैरिजन में, और उन्होंने जानबूझ के टैरिफ्स हाई लगाए हुए थे सो दैट उनका मार्केट में सेल हो। ओके, सो दिस वाज द रीज़न कि ट्रेडर्स को भी बहुत इफेक्ट पड़ा इससे। इम्पोर्ट ऑफ द ब्रिटिश गुड्स इनटू इंडिया अट्रैक्टेड लो टैरिफ्स। अब इसका ऑपोजिट ये इंडिया में कर रहे हैं ब्रिटिशर्स कि जो बाहर से सामान इंडिया में आ रहा है, स्पेशली ब्रिटेन से जो सामान आ रहा है, यूरोपियन मार्केट से सामान आ रहा है, उस पर बिल्कुल लो टैक्स लगा रहे हैं ताकि ये सामान भी इनका यहाँ पे चीप बिके कंपेयर टू दी लोकल गुड्स, इंडियन लोकल गुड्स, ठीक है। सो एनकरेजिंग देयर एंट्री इनटू इंडिया, ठीक है। ये एक दूसरा फॉर्म था अपने एक्सपेंशन का, ब्रिटिश इस तरीके से भी एक्सपैंड कर रहे थे। So by mid 19th century, exports of the cotton and the silk textiles from India practically came to an end. बहुत important कि 1850s तक आते आते हमारा जो मार्केट है सिल्क टेक्सटाइल्स का, कॉटन टेक्सटाइल्स का, कपड़ों का जो हमारा मार्केट है वो लगभग ख़त्म ही हो गया था, ठीक है।
free trade one way, that is, and refusal to impose protective duties against machine made goods from the Britain simply killed Indian manufacture। कह रहे हैं कि एक तरफ से तो ब्रिटिश का सामान बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आ रहा है, बिल्कुल नेग्लिजिबल आपने ड्यूटीज लगा रखी हैं सामान जो इंडिया में इंपोर्ट हो रहा है उस पर, और दूसरी तरफ मशीन मेड गुड्स हैं यार, दैट इज मशीन से प्रोड्यूस्ड क्लोथ्स आ रहे हैं, आपके दूसरे क्राफ्ट वर्क आ रहे हैं, जिसने इंडियन मैन्युफैक्चर को मार ही दिया। ठीक है, ओके। नेक्स्ट पॉइंट इज योर जमींदार्स, द ट्रेडिशनल लैंडेड एरिस्टोक्रेसी ऑफन सॉ देयर लैंड राइट्स forfeited। सो व्हाट वाज हैपनिंग कि कई जगह जब ब्रिटिशर्स जो है, स्पेशली आपने सुना होगा दैट प्लांटेशन जब उन्होंने स्टार्ट कर दी थी, जैसे लेट्स से इंडिगो प्लांटेशंस एंड ऑल, वेल इंडिगो प्लांटेशंस तो आप थोड़ा बात का एग्जाम्पल है, लेकिन फिर भी उन्होंने क्या किया, जब लैंड जो है वो अपने अंदर लेके आने लगे, अपने डोमिनियंस में जब जो स्टेट्स एनेक्स कर रहे थे तो उसकी लैंड भी आएगी, अब उस लैंड्स पे वो एग्रीकल्चर अपने अकॉर्डिंग कराते थे, वो सामान उगवाते थे या वो क्रॉप्स वो उगवा रहे थे जो उनको सेल करनी थी दूसरे मार्केट्स में। सो जमींदार्स की ऐसे केसेस में कई बार जो जमींदार होते थे उनकी लैंड्स जो है ज़बरदस्ती उनसे छीन ली जाती थी यूजिंग अ को वारंटो। को वारंटो का मतलब होता है, ये आपने पॉलिटी में भी पढ़ा होगा, दोज स्टूडेंट्स हु आर रीडिंग द पॉलिटी, को वारंटो का मतलब है दैट आस्किंग और क्वेश्चनिंग कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी, आप किस हक से आपके पास ये लैंड है। जमींदार से ये पूछते थे कि व्हाट इज़ योर अथॉरिटी टू हैव दिस लैंड। ओके, ये एक्चुअली एक रिट है, एक लीगल राइट है। ठीक है, ओके, चलिए बात की बात है। सो ये जमींदार से उनकी लैंड्स छीन लेते थे। एक एग्जाम्पल दिया हुआ है इन अवध, द स्टॉर्म सेंटर ऑफ द रिवोल्ट, जहाँ रिवोल्ट काफ़ी लार्ज स्केल पे हुआ। ठीक है, वहाँ पे 21,000 तालुकदार्स हैड देयर स्टेट्स कॉन्फिस्केटेड, उनके लैंड्स को उनसे छीन लिया गया। 21,000, इट्स अ बिग नंबर, राइट? ओके, सो से दे सडनली फाउंड देमसेल्व्स विदाउट अ सोर्स ऑफ इनकम। अब आपने उनकी लैंड्स ही छीन ली, अब जमींदार्स के लिए उनकी लैंड्स सोर्स ऑफ रेवेन्यू होते थे, दैट इज द सोर्स ऑफ इनकम। अब लैंड नहीं रहेगी तो रेवेन्यू कहाँ से आएगा? ठीक है, तो उनका भी सोर्स ऑफ इनकम उनसे छिन गया। ये जो डिस्पोजेस्ड तालुकदार थे, इन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को यूज़ किया, क्योंकि रिवोल्ट तो सिपाहीज ने स्टार्ट किया था, तो ये रोल में कैसे आए? इन्होंने सपोर्ट किया उन सिपाहीज को। ठीक है, वो मिल गए उनके साथ और अपोज किया ब्रिटिश को एंड ट्राइड टू रीगेन देयर लॉस्ट लैंड्स, जो उनसे छीन गई थी। उन्होंने कोशिश की कि हमको ये लैंड्स वापस मिल जाए। तो ये शो क्या करता है कि सिर्फ सिपाहीज का पार्टिसिपेशन नहीं था, देयर वाज पार्टिसिपेशन फ्रॉम द अदर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी as well, or the support of the other sections of the society, few sections, I'm not saying all the sections. ठीक है, okay, now the ruin of industry, Indian industry increased the pressure on the agriculture and जैसा हमने पहले देखा कि डाइवर्जन होने लगा, अब हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री वो चली गई है। ओके, तो भाई इनकम तो चाहिए ना, कमाना तो है कहीं ना कहीं से, तो पीपल एग्रीकल्चरल एक्टिविटी की तरफ डाइवर्ट होने लगे, तो इससे लैंड पे प्रेशर बनने लगा। तो कैसे प्रेशर बनेगा? लेट्स से 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है, ठीक है, उस पर पहले 2 लोग फार्मिंग कर रहे थे, लेकिन अब उसी 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड पे लेट्स से 4 पीपल आर फार्मिंग, तो प्रोडक्शन तो उतना ही है, ठीक है, लेकिन इनकम ज़रूर कम हो जाएगी। ओके, सो दिस वॉज हैपनिंग, सो इट कुड नॉट सपोर्ट ऑल द पीपल। अब ज़रूरी नहीं है कि डाइवर्जन की वजह से या चलो उनको दूसरा सोर्स ऑफ इनकम मिल गया है तो इनकम हो ही रही है उनकी, या अच्छी इनकम हो रही है, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। हमने अभी डिस्कस किया कि टैक्सेस तो वैसे भी हाई थे। ठीक है, नाउ लॉपसाइडेड डेवलपमेंट रिजल्टेड इन द पॉपुलराइजेशन ऑफ द कंट्री। तो लॉपसाइडेड डेवलपमेंट का मतलब है कि एक तरफ ब्रिटिश जो है अपने प्रॉफिट्स देख रही है, सिर्फ अपने इंडस्ट्रीज़ को वो ग्रो कर रही है, डेवलप कर रही है, अपने होम कंट्री में, ब्रिटेन में करी, यूरोपियन कंट्रीज़ में कर रही है, बट उसी जगह इंडिया में कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, और इससे इंडिया में क्या बढ़ी? पोवर्टी। पॉपुलराइजेशन का मतलब है पोवर्टी, इट इंक्रीज द पोवर्टी इन द कंट्री इन जनरल। ठीक है, तो ये सारे इकोनॉमिक कॉजेज बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, गो थ्रू देम वन बाय वन एंड ब्रीफली इनको एक्सप्लेन करना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल कॉजेज। सो पॉलिटिकल कॉजेज में क्या हो रहा है? दैट ईस्ट इंडिया कंपनीज ग्रीडी पॉलिसी ऑफ एग्रेंडाइजमेंट accompanied by the broken pledges। एग्रेंडाइजमेंट वही चीज़ की अपने प्रॉफिट्स मैक्सिमाइज कर रहे हैं कैसे भी करके, उनकी ग्रीडी पॉलिसी थी। प्लस ब्रोकन प्लेजेस, जो भी ट्रीटी साइन करते थे वो इंडियन स्टेट्स के साथ,
ठीक है, वो कभी भी ज़्यादातर उन्होंने उन ट्रीटीज़ को फॉलो नहीं किया, जो टर्म्स एंड कंडीशंस होते थे ट्रीटीज़ के उनको फॉलो नहीं किया, जो भी प्रोमिसेस वो करते थे उनको फॉलो नहीं किया. सो इट रिजल्टेड इन द कंटेम्प्ट फॉर द कंपनी एंड लॉस ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज. तो पहले क्या था कि जब नई नई ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी तो कुछ जो इंडियन रूलर्स हैं हमारे, स्पेशली जब मुग़ल रूल में स्टार्टिंग में आप अकबर का एग्जाम्पल ले लीजिए या फारूक सियार जिन्होंने फरमान जारी कर दिए थे. सो दे वर नॉट दैट वेरी कि हाँ ये आगे जाके गलत फ़ायदा उठा सकते हैं, लेकिन जब धीरे धीरे उनकी एक्टिविटीज़ देखने को मिली तो लोगों को पता चला दैट येस दे आर मिस यूजिंग दी फैसिलिटीज़ गिवन टू देम. जो ट्रेड कंसेशंस उनको दिए उसका मिस यूज़ कर रहे हैं, प्लस एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं हमारा. सो उनका जो पॉलिटिकल प्रेस्टीज है वो डाउनग्रेड हुआ. ठीक है, लोगों का ट्रस्ट उनसे ख़त्म होने लगा. Besides causing a suspicion in the minds of almost all the ruling princes, अब जो ruling princes हैं उनको भी धीरे धीरे पता चलने लगा that yes these British officials, the East India Company is not in favor of our country, that is India. ठीक है, एंड उनकी जो कुछ पॉलिसीज़ हैं दैट इज़ इफेक्टिव कंट्रोल, सब्सिडरी अलायंस, डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स. सब्सिडरी अलायंस किसका था? वेल्सली. ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स किसका था? डलहौजी. अच्छा, डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स को याद करने का तो बहुत इजी तरीका है ना, डी फॉर डॉक्ट्राइन ऑफ लैब्स, डी फॉर डलहौजी, ऐसे याद रखिए. ठीक है, इनके ये जो कुछ सिस्टम्स थे इसकी वजह से ऑब्वियसली हमने देखा है कि कैसे ब्रिटिश ने अपने डोमिनियंस में इंक्लूड करना शुरू कर दिया इंडियन स्टेट्स को. ठीक है, और ये कहीं ना कहीं शो करता था कि कैसे वो अपने प्रोमिसेस को थ्रू आउट ब्रेक करते आ रहे हैं. सब्सिडरी अलायंस में क्या हो रहा था जो वेल्सली ने शुरू किया था, दैट वो अपनी आर्मी स्टेशन कर देते थे उस इंडियन स्टेट के किंगडम में. ठीक है, एंड वहाँ पे एक ब्रिटिश रेसिडेंट प्लेस कर देते थे और धीरे धीरे उनके इंटरनल अफेयर्स में इंटरफेरेंस उनका बढ़ जाता था. राइट, और जो पूरा आर्मी का खर्चा था किसको देना पड़ता था? उस इंडियन रूलर को. सिमिलरली डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या हो रहा था कि अगर कोई इंडियन रूलर, ठीक है, जो थ्रोन पे बैठा हुआ है उसकी डेथ हो जाती है और उसका कोई लीगल हेयर नहीं है, दैट इज़ कोई लीगल सन नहीं है उस थ्रोन पे बैठने के लिए, तो वो स्टेट कौन एनेक्स कर लेता था? ब्रिटिश एनेक्स कर लेती थी. ओके, तो ये जो सब चल रहा था, ये एक्टिविटीज़ चल रही थी, तो लोगों का ट्रस्ट बिल्कुल ख़त्म होता जा रहा था और रूलर्स जो इंडियन प्रिंसेस हैं उनका भी ट्रस्ट ख़त्म होता जा रहा था एंड दे वर गेटिंग हाईली डिससेटिस्फाइड. ओके, so the collapse of the rulers, the erstwhile aristocracy, that is the royal families, जो rulers थे, ठीक है, तो इनका collapse होने लगा. मुगल तो आपको पता ही है, मुगल एम्पायर ख़त्म 1857 के रिवोल्ट के बाद. और 1857 क्या कहिए, जब बैटल ऑफ प्लासी हो गया तो उसका एंड तो शुरू हो गया था वहाँ से. ठीक है, तो ये जो एरिस्टोक्रेसी थी, ये जो रॉयल फैमिलीज थी आपकी, इनका कोलैप्स होने लगा. ठीक है, बिखरना शुरू हो गई है. सो इट एडवर्सली अफेक्टेड दोज सेक्शंस ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच डिराइव देयर सस्टेनेंस. अब आप वही चीज़ बार बार हम डिस्कस कर चुके हैं दैट कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ था इन्होंने. आप सोल्जर्स ले लीजिए, ठीक है, आप पेंटर्स ले लीजिए, जो ज़मींदार्स हैं, ठीक है, वो टैक्स कलेक्ट करके इनको देते थे तो कमीशन मिलता था इनको. तो रूलर्स के अंडर में जो उनकी जो प्रजा थी, ठीक है, जो सब्जेक्ट पीपल थे, हाँ, वो हाईली डिपेंडेंट थे उस रूलर पे भी. अगर रूलर उन पे डिपेंडेंट था फॉर द टैक्सेस एंड द रेवेन्यूज, सो दीज लोकल पीपल दे वर ऑल्सो डिपेंडेंट ऑन द रूलर इन टर्न फॉर द इनकम. तो जब ये रूलर्स ही नहीं रहेंगे तो इनकम कहाँ से होगी? ठीक है, एम्प्लॉयमेंट छिनना शुरू हो गया उनका. तो ये था आपका पॉलिटिकल कॉज. आई एम सॉरी फॉर दिस. यस, सो दिस वॉज योर पॉलिटिकल कॉज. नेक्स्ट है आपका एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज. सो रैम्पेंट करप्शन है कंपनी एडमिनिस्ट्रेशन में, दैट इज जो ऑफिशियल्स हैं आपके बड़े बड़े रैंक्स पर, इवन छोटे रैंक्स पर भी, जैसे हमने सबसे बेस्ट एग्जांपल इसका देखा है कि 10 तक जो उनको पासेस मिले हुए थे उसका मिसयूज़ कर रहे थे वो. तो करप्शन बहुत था कंपनी में. पुलिस में करप्शन है, जो ऑफिशियल्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं, जो कोर्ट्स हैं वो करप्शन कर रहे हैं. कोर्ट्स कैसे करप्शन कर रहे हैं कि कोई केस आया है, ठीक है, देयर इज ऑन दी वन हैंड देयर इज सम ब्रिटिश ऑफिशियल या कोई ब्रिटिश पर्सन है और दूसरी तरफ आपका एक इंडियन पर्सन है, तो ज़्यादातर किसको फेवर किया जाता था? उस ब्रिटिश पर्सन को फेवर किया जाता था. या फिर कोई बहुत ही इन्फ्लुएंशियल ज़मींदार है और दूसरी तरफ पीजेंट ने, किसी फार्मर ने उस अगेंस्ट केस किया हुआ है कि इन्होंने मेरी लैंड ज़बरदस्ती ले ली, तो वो ज़मींदार को फेवर करते थे. ठीक है, जुडिशियल सिस्टम में जनरली
the people who had power and who had money, whether it is British or whether it is the influential class of the Indian society only, उनको फेवर किया जा रहा था. ठीक है. Okay, so they became the major cause of discontent. So again, the character of the British rule imparted a foreign and alien look to it. अब ये जो आए हैं ब्रिटिशर्स, ये बाहर से आए हैं. ठीक है. इंडियन पीपल जो हैं, दे आर नॉट एबल टू एक्सेप्ट देम बिकॉज दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग टू शो दैट यस, कुछ भी ऐसा नहीं कर रहे हैं जो इंडियन लोगों के वेलफेयर में हो. सो दे आर स्टिल लुक्ड एट कि हाँ, ये फॉरेनर ही हैं. कहने को कितने लोग, कितने ऑफिशियल्स, दे गॉट मैरिड इन टू इंडिया, दे गॉट मैरिड विद इंडियन वेमेन, दे हैड चिल्ड्रन इन इंडिया, they lived their lives in India and they died in India, but still they were not getting accepted, and we saw the reason. ठीक है. सो काइंड ऑफ एब्सेंटी सॉवरेंटी है कि कहने को तो जो सॉवरेन रूल कर रहा है, ठीक है, जो अथॉरिटी है, जो मेन अथॉरिटी वो ब्रिटिश है, बट इंडियन पीपल दे डिड नॉट एक्सेप्ट देम एज देयर genuine authority, or they did not follow them. Okay, so this was the administrative cause. Let's keep it till here only today. ठीक है. Rest of the causes we will take up in the next lecture, and thanks a lot for learning with me, and please don't forget to like, share and subscribe. Meet you in the next lecture.